क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? Am I audible clearly to everyone? Absolutely clear. Perfect. Clear. Because I am not using Ashokji, welcome. earphone. थैंक यू सर। मैं ईयरफोन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कंप्यूटर के ऑडियो। नमस्कार अशोक जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। Sir is just joining. यस यस आई एम जॉइनिंग। Have you started? ये तो लता मैम, ये तो आपको लेने चाहिए था, ये वाला जो वेबिनार है। You would be the, you know, most appropriate person to जरा जोर से करो। लता गोयल मैम। हाँ जी हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ, ये तो वेबिनार आपको लेना चाहिए था। You are the most suitable person. अरे नहीं नहीं नहीं, आपके आगे मैं क्या हूँ? I am waiting to listen to you. आपको सुनना। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। So humble. चलो, should we increase? Nilesh, I would request you to mute all, and then you keep on admitting the people, allowing the people to attend this. अनूप जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर। नमस्कार। नमस्ते। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। ये मैडम ने ज्वाइन किया है। मैडम आपकी आईडी नहीं आ रही है, जहाँ आईडी डालेंगे अपनी प्लीज। मेरी आईडी नहीं। We are in travel since 10 months. बताऊंगा आज बताऊंगा। And we are in this place since 21 days because the lockdown of Nilesh, Nilesh, and unmute the moderator and allow him to start the webinar now. Okay, you mute everyone and allow the moderator, unmute him, and then we can start because it is 5:30. नीलेश, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी सर। जी अंकल। हैंड ओवर टू अजीत कर रहा हूँ। अजीत आपका इंट्रोडक्शन देंगे एंड आवर कीनोट स्पीकर विल स्टार्ट। ओके नीलेश जी। पहले मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपने अजीत जी करेंगे। जी जी स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें। Let us start the meeting now. Welcome Dr. Anup Gupta to the webinar. I am Deepak Goel, President of Rotary Club Mathura Central. We welcome all the delegates who are participating in this webinar based on for the future of education. Now I would like to invite our Joint Secretary, Mr. Ajit Agrawal ji. Please give the brief introduction of Dr. Gupta. Thank you, sir. Good evening, everybody. I am honored to introduce all an eminent academician and able administrator, Dr. A.K. Gupta. Apart from being Dean, Academic Affairs at GLA University, Dr. Saab carry many more responsibilities on his shoulder. He has been associated with GLA since inception and oversaw its successful transformation to an university of repute. He is MA, MPhil English Literature and did Executive MBA from IIT Bombay in 2012. He did Masters in Higher Education Administration from Michigan University, USA, and guided many students to PhD. His achievements are numerous. Last but not least, his wife, Dr. Poonam, is a renowned eye surgeon. Post-COVID-19, there will be paradigm shift in our priorities and the way we live. Education will not be any different.
It will be very interesting to listen an expert on the subject. I invite Dr. A.K. Gupta to enlighten us. Thank you, everyone. Sir, thank you very much for the nice words and the nice introduction. It's really an honor to be here. I welcome everyone, especially all the office bearers of this Rotary. And thank you very much for giving me this wonderful opportunity. And I just got a message day before yesterday from my doctor friend who wanted to know. Nilesh, can you mute everyone? Yeah. तो कल परसों मेरे पास एक डॉक्टर साहब का मैसेज आया और उन्होंने लिखा अब ये तो मुझे नहीं मालूम कैसे क्यों आ रही है। ऐसा हो सकता है कि उनको नॉर्मल तरीके से दिख रहा हो। हाँ, हो सकता है। Mute their mics. Yeah. तो मैं बोल रहा था कि लॉकडाउन पीरियड में सबके पास बहुत सारे वेबिनार्स के मैसेजेस आते हैं, तो कल एक डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं भी एक वेबिनार करना चाहता हूँ। टॉपिक होगा हाउ टू अवॉइड वेबिनार्स एंड रिटेन योर सैनिटी आफ्टर अटेंडिंग इट. So I hope that everybody will be able to retain the sanity after admitting this, webinar. So let me just share this webinar. I am sharing the PPT education sector after and COVID-19. So before we start this, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसको holistically समझेंगे तो that will be very good. And when I say holistically, मेरा मतलब होता है कि every unit in itself is a कंप्लीट यूनिट. वो अपने आप में एक परिपूर्ण होती है, एक इकाई अपने आप में परिपूर्ण होती है और वो फिर एक बड़ी इकाई का हिस्सा होती है और वो बड़ी जो यूनिट होती है वो खुद अपने आप में फिर परिपूर्ण होती है. तो इसको मैं एक फिश एंड वाटर का एग्जांपल देता हूँ. हम सारे जो एकेडमिशियंस हैं वो कभी कभी क्या होता है, जब फिश वाटर में रहती है तो उसको पता नहीं लगता वाटर के बारे में, अनलेस इट इज आउटसाइड ऑफ द वाटर दैट इट कैन सी व्हाट वाटर मीन्स फॉर इट. तो ये कभी कभी आप लोगों का इसलिए इसमें जुड़ना बहुत अच्छा है कि आप लोग आउटसाइड से भी देख रहे हैं और इनसाइड से भी देख रहे हैं. तो जैसे एक जब डांसर होता है वो डांस करता है तो उसके जो डांस स्टेप्स हैं वो उसको पता नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, बट somebody who is sitting in the balcony can very well see which dance steps need correction. तो एक इस तरीके से हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे. I have not done any very great research. मैंने कुछ loud thinking किया है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उसी को मैं आपसे शेयर करूंगा. और मैं कुछ बैठे बैठे लिस्ट बनाता रहता हूँ, कुछ माइंड मैपिंग करने की कोशिश की, कुछ फ्रेंड से शेयर किया, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ और फिर ये फूड फॉर थॉट होगा हम सबके लिए. हम इस लिस्ट को और इस माइंड मैप को और आगे बढ़ा सकते हैं. वी कैन थिंक विच आर द एरियाज वेयर वी हैव टू वर्क. तो वेयर आर वी एंड वाई, हम कहाँ हैं और क्यों हैं. तो मुझे नहीं पता आप में से हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस. मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े. तो अगर आप देखेंगे तो 1760 में से 1820 तक पहला इंडस्ट्री 1.0 रिवॉल्यूशन आया. और ये रिवॉल्यूशन जो आया ये आया जब हैंडमेड प्रोडक्शन मेथड से हम मशीन पर ट्रांसफर हो गए एंड इट एक्चुअली चेंज द एंटायर वर्ल्ड. तो इससे भी सारी दुनिया पूरी बदल गई. फिर जो दूसरा रिवॉल्यूशन आया जिसको आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 बोल सकते हैं, जिसका मैंने टाइम पीरियड आपको बताया 1870 से 1914 तक, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि इसमें स्टीम इंजन आया और इसमें टेलीग्राफ आया. उससे क्या हुआ कि काफी स्पीड बढ़ गई लोगों के ट्रांसफर की एक जगह से दूसरी जगह तक, और इवन यू कुड ट्रांसफर योर थॉट्स और योर आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. तो ये सेकंड रिवॉल्यूशन आया, इससे भी बहुत बड़ा चेंज आया. थर्ड रिवॉल्यूशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेट 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिसको आप डिजिटल रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं. इसमें भी यही हुआ कि कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, बहुत तेजी से दुनिया बदली और उसको हमने इंडस्ट्री 3.0 बोला. ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0 या इसको स्मार्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं. इसके 4 बेसिक चीजें हैं, हिस्से हैं, जिसको आप बोल सकते हो साइबर, फिजिकल सिस्टम, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग. जो AI
में बहुत ज्यादा काम चल रहा है, ड्राइवरलेस कार्स के बारे में। तो ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आ रही हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपकी एजुकेशन का होना बड़ा जरूरी है। सो अनलेस द एजुकेशन सिस्टम अंडरस्टैंड्स ऑल दीज impacts of these industrial revolutions on us, we cannot give the proper kind of education which can prepare our youth for these for the time to come. तो हम तैयार नहीं हो पाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये इसलिए देना चाहता हूँ कि देखें हम 3000 साल में पिछले कितनी तेजी से, तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपने आप को और वापस जाते हैं 3000 साल में। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हाउ फास्ट दी टेक्नोलॉजी और हाउ फास्ट द मैन इज एक्चुअली रनिंग। 1950 में एवरेज, एक रिसर्च कहता है कि एवरेज आदमी 5 माइल्स पर डे चलता था। 2000 में ये स्पीड हो गया, मैं एक बार चेक करके बताता हूं आपको, ये हो गया आपका 20 माइल्स पर डे। और 2020 में आदमी चलता था एक दिन में 60 माइल पर डे। तो ये जो ट्रैवलिंग स्पीड है, ये जो आदमी की स्पीड है चलने की, ये कितना तेजी से बढ़ी। अनलेस दिस COVID-19 एक्चुअली स्टॉप्ड एवरीबॉडीज स्पीड एंड मेक द वर्ल्ड स्टैंड स्टिल। तो ये, इसको अगर आप 3000 साल के इतिहास को देखें, तो आप अगर इस 3000 साल को एक हम घड़ी से इसकी एनालॉजी दें और हर मिनट को 50 साल का माने, तो आप जरा देखिए कितनी तेजी से टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए 4 मिनट पहले इंटरनल कंबस्शन इंजन आया, 2.5 मिनट पहले मोटर कार का आविष्कार हुआ, 2 मिनट पहले, जस्ट अ मिनट, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? 2 मिनट पहले आप देखिए फर्स्ट पावर्ड एयरप्लेन फ्लाइट आया, राइट ब्रदर्स ने। 1.9 मिनट पहले रॉकेट प्रोपल्शन शुरू हुआ, 1.5 मिनट पहले आप जेट इंजन का आविष्कार हुआ, और 1 मिनट पहले फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट ऑन द अर्थ स्पुतनिक आया। 50 सेकंड पहले आप देखें फर्स्ट मैन्ड मून लैंडिंग एंड मून वॉक हुआ 1969 में, आपको पता है, अपोलो 11। और 30 सेकंड पहले रीयूजेबल स्पेस शटल आया, डिस्कवरी। 2 सेकंड पहले रोडेबल एयरक्राफ्ट्स आए, 1 सेकंड पहले अननेम्ड स्पेस प्लेन। केवल ये ट्रैवल में जो चेंज आया, ये केवल चेंज नहीं है जिसको आप कह सकते हैं बहुत तेज हुआ। अगर ये इसको बोलें, द रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट इज नॉट ओनली द वन इंडेक्स फॉर द पेस ऑफ चेंज, बट इट इज नॉट द फास्टर वन। 1440 और 1450 के बीच में हमारी क्लॉक को अगर हम देखें, तो मात्र 11 मिनट पहले जॉन्स गटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, और तब से ये जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई। देखिए 11 मिनट पहले प्रिंटिंग प्रेस, 3.4 मिनट्स पहले मॉर्स कोड आया। मॉर्स कोड जब हम टेलीग्राम करते हैं तो वो जो टिक 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 करके बजाते हैं वो आया, उसका इन्वेंशन हुआ। 2.7 मिनट्स एगो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ। 2.5 मिनट पहले रेडियो का इन्वेंशन हुआ। 1.6 मिनट्स पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया। 54 सेकंड पहले फैक्स मशीन आई। 41 सेकंड पहले पर्सनल कंप्यूटर आया। 38 सेकंड्स पहले एनालॉग सेल फोन आए। 25 सेकंड पहले वर्ल्ड वाइड वेब आया। 22 सेकंड पहले एसएमएस मैसेजिंग आई। 13 सेकंड पहले ब्रॉडबैंड आया, और 1 सेकंड पहले 3D टीवी आया। सो you can see how fast in these last 500 years we have come to this place. लेकिन सवाल ये उठता है, मुझे जो ऐसा महसूस होता है कि ये सारे डेवलपमेंट से हमने जो सीखा, ऐसा लगता है कि हमने जो अपनी सारी पावर इसको डेवलप करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में लगाई, वो हमने लगाई एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेचुरल विजडम एंड वर्च्यू। This is very, very dear to me, what I wanted to say. Statistical averages are replacing qualitative human beings. Every time we spend money, we are casting a vote for the kind of world we want. हम हर मिनट जो पैसा खर्च करते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, तो हमारी जो ये मर्केंटलिस्ट इंस्टिंक्ट है, ये एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। और द नेचर एंड द एग्रीव्ड एनिमल किंगडम हैव एक्चुअली issued the first warning in the form of COVID-19.
and we are paying the price of destroying www, which I say wood world web. तो जितना भी हम कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं, ये सब उसका नतीजा है, तो हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए. जब when a man does not know what harbor he is making for, the wind is the right wind. This is situation. You can't change the wind, but you can adjust the sail. This is what the education sector is actually trying to do. तो मैं बैठे बैठे एक लिस्ट बना रहा था. ये देखिए, जब होलिस्टिकली आप सोचेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा. इस लिस्ट में आप अपना बढ़ा चढ़ा कम ज्यादा कर सकते हैं. मैं देख रहा था क्या चीजें कोविड-19 के बाद ऊपर जाएंगी, क्या चीजें नीचे आएंगी. इसको समझना भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है और एक अच्छे एजुकेशनिस्ट को भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता लगता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा आफ्टर कोविड-19 और किस तरीके के कोर्सेज हम डिजाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह. हम ऑनलाइन लर्निंग के बारे में भी बात करेंगे. तो मैंने कुछ लिखा था क्या अप जाएंगी. देखिए, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी, घर ज्यादा बिकेंगे, महंगे होंगे. ऑनलाइन लर्निंग ऑफ कोर्स मेरी लाइन में है कि वो ऊपर जाएगा. हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर ऊपर जाएगा. डिजिटल सर्विसेज बहुत आगे बढ़ेंगी. फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ बड़ा तगड़ा होगा. स्टोरेज डिवाइसेस बढ़ेंगी. पेन केबिन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आगे जाना चाहेंगे. ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी जल्दी से खत्म होने वाला है. मुझे लगता है ये एक नॉर्म बन जाएगा, और जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि बैक टू नॉर्मल विल नॉट बी द नॉर्मल, विल नॉट बी द नॉर्म. बैक टू नॉर्मल अब कुछ नहीं हो पाएगा. अगर हमें याद हो तो 9/11 से पहले एयरपोर्ट्स पर कभी भी ये जो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती थी, ये नहीं हुआ करती थी बहुत सारे देशों में. लेकिन 9/11 के बाद ये फिर कंपलसरी हो गया, एंड दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो ऐसे ही अब ये जो सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये मुझे लगता है ऑल दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ. ट्रेन, ऑफिस फर्नीचर है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट है, लास्ट माइल डिलीवरी है, पर्सनल फिटनेस इक्विपमेंट्स हैं. ये लाइन मैं अभी लिख ही रहा था. इनको रोज आप सोचते जाइए और आप देखेंगे कि आप इनको बढ़ा सकते हैं. सो यू कैन मेक योर ओन लिस्ट एंड वी कैन डिस्कस व्हाई दीज थिंग्स विल गो अप एंड व्हाई दीज थिंग्स विल गो डाउन. क्या क्या चीजें नीचे जाएंगी, इस पे मैंने देखा फेस टू फेस लर्निंग थोड़ा कम होगा. फैशन एंड गारमेंट इंडस्ट्री नीचे जाएगी. लाइव स्पोर्ट्स नीचे जाएंगे. अभी आपने देखा सब कोविड-19 की वजह से जितने भी मैचेस वगैरह थे, ये सारे के सारे नीचे चले गए. एयर ट्रैवल कम होगा. ऑटो इंश्योरेंस नीचे जाएगा. वेडिंग्स में खर्चे लोग कम करेंगे, भीड़ कम इकट्ठी होगी. कंसर्ट्स अभी साल 2 साल मुझे नहीं लगता ज्यादा होंगी, लोग डरेंगे. रेस्टोरेंट्स में लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, होटल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, बैंक्स में ज्यादा नहीं जाना पसंद करेंगे. कार का दोनों तरीके से कर सकते हैं आप. कार से यात्राएं कम करेंगे लोग, लेकिन हो सकता है सॉरी और जिम जो है वो नीचे जाएंगे. तो ये आप अपनी भी एक लिस्ट बना सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं क्या चीजें ऊपर जाएंगी, क्या चीजें नीचे जाएंगी. और जब हम इनसे मार्केट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो समझ है वो ज्यादा अच्छी होगी होलिस्टिकली. ये मैं आपसे एक पर्सनल जो मेरी लाउड थिंकिंग है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ये मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाना शुरू किया था. बाई चांस मैं डिस्कस कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी के लिए. तब तक दीपक भाई साहब से मैं मिला. उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एजुकेशन आफ्टर. तो ये अभी मेरा अधूरा ही रह गया है, लेकिन चलिए इसको डिस्कस करते हैं. और आप सब लोग ये देख सकते हैं हायर एजुकेशन 4.0 किस तरीके से, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, और अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं माइंड मैप को. मैं आपको थोड़ा सा इसका आगे का डिटेल भी दूंगा, बट ऑल ऑफ यू कैन जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड कैन स्टार्ट वर्किंग इन दीज एरियाज. तो हायर एजुकेशन को अगर हम बड़े तौर पे देखें, ये कितनी चीजों से मिलकर बना है. जरूरी है कि इसमें मैंने सब कवर किया है, जितना मेरे दिमाग में आया उतना किया मैंने. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट सपोर्ट, ये बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा. फैकल्टी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें बड़ा स्कोप है और ये हम सबको ध्यान रखना है. हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर फैकल्टी फॉर डेवलपिंग कंटेंट, डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज. सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्लासरूम के बारे में अगर कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. अनफॉर्चुनेटली मैं एक पोल आज इसमें क्रिएट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम. तो मैं पूछता, एनीवे जरूरी नहीं है कि सबको पता हो, तो मैं बता दूं. सिंक्रोनस क्लासेस का मतलब है जैसे आपकी फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी, सेम टाइम टेबल आपका अब ऑनलाइन हो गया. अगर 11 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का मैथमेटिक्स का लेक्चर है, तो 11 बजे जूम से उनकी मैथमेटिक्स की
क्लास चल रही है, और अगर 3 बजे उनका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश का लेक्चर है, तो 3 बजे उनकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की टीचर जूम पर उनकी क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है कि आप ऑफलाइन है, मतलब आपने ऑनलाइन एक कोर्स तैयार करा दिया एंड द स्टूडेंट हैज द चॉइस टू गो टू दैट प्लेटफॉर्म, और फिर वहां जाके वो जिस समय करना चाहता है कर दिया उसमें आपने। तो ये हमें अभी सोचना पड़ेगा, ये जो इस समय हमने हाल फिलहाल में कर दिया है, जूम के थ्रू सारी क्लासरूम और इवन स्कूल्स में भी चल रही हैं, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये, इसको मैं बोलता हूँ कि ये बैंडेड ट्रीटमेंट है, आपने बैंडेड बांध दिया है, और लेकिन असली जो चीज है उसका आपने अभी इलाज नहीं किया है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और देखिए, इनको अगर अभी से सोचकर हम, जो इसमें क्या बोलते हैं उसको, लीड ले लेगा, वो आगे निकल जाएगा, उसका सर्वाइवल हो जाएगा, और जो इसमें पिछड़ जाएगा वो फिर पीछे रह जाएगा, उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल रिपोजिटरी की जरूरत होगी, इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन एक हायर एजुकेशन का पार्ट है, हाउ इट विल बी इम्पैक्टेड आफ्टर कोविड, रेगुलेशंस क्या आपके बदलेंगे, एडमिशंस भी डेफिनेटली बदलेंगे आपके, थर्ड पार्टी ऑनलाइन टूल्स आप क्या यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, कॉस्टिंग, फंडिंग और आरओआई के बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, गवर्नमेंट से जितनी भी फंडिंग आपकी होती थी वो सारी अभी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता जो फंड हमारे प्रोजेक्ट्स भी अगर 2-3 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं, उनमें कितने समय के बाद हमें वो उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी, तो ये भी बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। इन सब से हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे ये देखना पड़ेगा। इंटर्नशिप इज गोइंग टू बी अ चैलेंज कोविड-19 के बाद, कंपनीज में कैसे इंटर्नशिप के लिए आप जा पाएंगे। प्लेसमेंट हम सबको पता है, यूएस में तो 2-4 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम लिखा दिए हैं, करोड़ों। मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने उनको अभी मैसेज करके पूछा कि हाउ आर दे, तो उन्होंने कहा वी आर लेड ऑफ। तो 2-2 हस्बैंड वाइफ दोनों लेड ऑफ हो गए, और इसलिए वहां पे सड़कों पे आप देखिए कि लोग अगेंस्ट दी 9-9.5 लाख कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी people are on the road and making movements against this lockdown or stay at home policy. तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ये सारे, ये तो इन हिस्सों को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं I will share all these slides with Nilesh and Deepak भाई साहब, and or we can share it on the WhatsApp group if you have. I will transfer all these. I will give all these slides to you. और फिर उसके बाद इन पर आप विचार करिए। इसको मैंने थोड़ा और बढ़ाया है, ये दिखाई नहीं देगा आपको, तो इसको मैंने थोड़ा सा फोकस करके एक जगह बताया। जैसे कंटेंट डेवलपमेंट सपोर्ट में, तो मेक और बाई, क्या आप खरीदेंगे या बनाएंगे, उसका विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, वीडियो डेवलपमेंट, गेमिफिकेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लर्निंग एनालिटिक्स, पार्टनरशिप विद स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, क्यूरेशन ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। हर हिस्से को फिर आप और आगे ले जा सकते हैं और उसके बहुत सारे एरियाज बना सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कहां पर हमें काम करने की जरूरत है। तो दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट। We can again do some kind of brainstorming, sitting 2 or 3 educationists together, and can see where the scope is, how we have to improve this online education. तो ये एक important area है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर कोविड-19 के बाद कैसा होगा। तो आप देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक हैज सीरियसली impacted the higher education sector, not only the higher education sector, even the school education also. अभी तो रिसेंट एक न्यूज आई थी कि जो अगला एकेडमिक सेशन है वो सितंबर से शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में भी सोचना होगा। और अगर हम ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करते हैं, और जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी आई हैं, 9th वालों को 10th में पास ट्रांसफर कर दीजिए, 11th वालों को 12th में ट्रांसफर कर दीजिए, और 1st to 8th तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आई थिंक वी आर कंप्रोमाइजिंग with the quality of education. तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन से क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा है, तो आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो जैसे जैसे दिन पास होंगे, कोई इमीडिएट सोल्यूशन अभी नहीं है कि हम कोविड-19 को स्टॉप कर सकें। इसने सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट किया है हमारे सिस्टम को। 285 मिलियन यंग लर्नर्स हैं इंडिया में इस समय, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली उनकी एजुकेशन तो इम्पैक्ट हो ही रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि फॉर रीचिंग इकोनॉमिक और सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं, वो भी फर्क पड़ेगा। दूसरा मुझे जो इसका इम्पैक्ट लगता है वो लगता है कि जो स्ट्रक्चर है स्कूलिंग और लर्निंग का, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड असेसमेंट मेथडोलॉजीज, that is going to be the first thing to be affected by these closures. Only a handful of private institutions could adopt online teaching methods. इनके जो काउंटर पार्ट है, सोचिए जो लो इनकम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल काउंटर पार्ट्स हैं, वो तो पूरी तरह से शट डाउन कर गए, उनको तो ई लर्निंग सॉल्यूशंस के लिए कोई एक्सेस ही नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हम कैसे मैनेज करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कोविड-19 के बाद आएगा। ये देखिए, अपॉर्चुनिटीज एंड डिमांड फॉर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन विल डिक्लाइन। ऑफ कोर्स ये भी आप एक देखेंगे कि अगर आप देखें कि large number of Indian students after China, they enroll in the universities abroad, especially in countries which are worst affected by this pandemic, US, UK, Canada, Australia. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब मेरे ख्याल से साल 2 साल तक नहीं जा पाएंगे, तो इंटरनेशनल जो एजुकेशन की डिमांड है वो भी कम होने वाली है। एक और अगर हम पॉइंट देखें तो हम देखते हैं, नीडलेस टू से दैट द पैंडेमिक हैज ट्रांसफॉर्म, ये जो ओल्ड चॉक बोर्ड का सिस्टम था ये अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना था कि ये बड़ा बैलेंस तरीके से होना चाहिए। अगर अभी तक हम, लेकिन अच्छी बात है, कोविड ने एक और अच्छी बात सिखाई, अभी तक हम लोग कभी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सोचते ही नहीं थे। इंडिया में तो नहीं सोचते थे। मुझे नहीं पता, मैं एक आज पोल में क्वेश्चन बनाने वाला था कि आप में से कितने लोगों ने कोई ऑनलाइन कोर्स मूक के थ्रू अटेंड किया है या लिया है, पढ़ाया है या खुद किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं ये इंडिया में पहले कभी होती नहीं थी। तो थैंक्स टू दिस कोविड-19 कि इसके बहाने हम सब लोग जूम के थ्रू एटलीस्ट एक बार हमने इसको टेस्ट किया कि ऑनलाइन कैसा होता है। हालांकि हमारे यूनिवर्सिटी में तो क्या, यूएस और यूके में भी मैंने देखा जूम बॉम्बिंग का बड़ा रिवाज हो गया है। लोग चलती हुई क्लास में पोर्न चला देते हैं और आपको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू लर्न इट। तो ये इसके बहुत सारे तरीके हैं जो जिस पर एक अलग से वेबिनार हो सकता है, हाउ टू मैनेज द ऑनलाइन क्लास। तो ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पॉइंट है। और फिर आप देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी एक डिबेटेबल है कि ऑनलाइन से क्या हम इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। यस, मुझे लगता है, देखिए जब फेस टू फेस होता है तो यू हैव अ लिमिटेड टाइम। आपके पास 40 to 45 आवर्स होते हैं कोर्स पढ़ाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। देयर आर नॉर्मल 4 क्रेडिट कोर्स contains 40 to 45 lectures। तो वहां 40 to 45 lectures में आप कितना पढ़ा पाते हैं, और आप अगर उसको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, जिसको हम फ्लिप क्लासरूम बोलते हैं, फ्लिप क्लासरूम का मतलब है कि आपने कुछ मटेरियल दिया पढ़ने के लिए और स्टूडेंट्स ने उस मटेरियल को पढ़ा और फिर आपने फेस टू फेस क्लासरूम में उसको डिस्कशन मोड में, देखिए 2 तरीके की लर्निंग है। वन लर्निंग इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, the another learning is called passive learning। passive learning और active learning में फर्क ये है कि passive learning को बोलते हैं ट्रांसमिटल मोड ऑफ लर्निंग। ट्रांसमिटल मोड ऑफ लर्निंग में ये है कि एक टीचर आया, क्लास के अंदर गया, 60 मिनट तक वो लगातार बोलता रहा और उसके बाद क्लास से बाहर चला गया। इट्स लाइक यू हैव अ जग फुल ऑफ वाटर एंड यू आर पोरिंग दैट वाटर इनटू द एम्प्टी ग्लास। तो आप खाली ग्लास में जग से भरे हुए पानी को डाल रहे हैं, ये पैसिव लर्निंग है। तो इसमें जो बच्चे ने सीखा वो एक्चुअली मैं बहुत सालों से जीएलए में देख रहा हूँ, और जब मैं जैसे यूएस से आया तो मैंने सबसे पहला पॉइंट यही उठाया कि हमें बच्चे को सिखाना, पढ़ाना नहीं है, हमें उसको सिखाना है, लर्निंग करे, वो एक्टिव लर्निंग करे। तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिटल मोड ऑफ लर्निंग, दैट इज पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ लर्निंग में बच्चा खुद पढ़कर आता है एंड देन यू डिस्कस विद हिम इन द क्लास। बच्चे सवाल पूछते हैं और सवाल जवाब से हम उस लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग बड़े पुराने समय से बोलते आ रहे हैं कि टीचर इज नॉट अ सेज ऑन अ
stage. ये बड़ा पुरानी कहावत हो गई है, he is a guide, he should be a guide by the side. तो एक टीचर को सेज ऑन अ स्टेज नहीं होना है, he has to be a guide by the side. वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका अपनाएगा, वो एक मैनेजर होगा, लर्निंग का मैनेजर होगा, जिसमें सारे बच्चे लर्निंग करेंगे. तो ये पॉसिबल है ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू. आप ऑनलाइन लर्निंग पर जब डिस्कशन फोरम डेवलप करते हो, बच्चों को इस तरीके के असाइनमेंट्स देते हो कि वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के थ्रू. अब देखिए, हम एक वर्कशॉप कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ, जिसमें हम अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस पर जाते हैं, तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो चीटिंग हो सकती है, यू कैन ऑलवेज डिच द टेक्नोलॉजी. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जिसका आंसर वो इंटरनेट पर ना ढूंढ सके. सो हाउ टू डू दैट, वो बहुत सारे तरीके हैं उसके. तो ये सारी चीजें भी अब जो फैकल्टी की ट्रेनिंग है और फैकल्टी का जो डेवलपमेंट है, वो इसी तरीके से हमें करना होगा. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं और इनके तरीके हैं हमारे पास कि हम उनको कर सकते हैं. नीड ऑफ स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द इफेक्ट of the pandemic on job offers, internship program and research projects. तो strategies की requirement होगी to prepare the higher education sector for the evolving demand supply trend across the globe, particularly those related to the global mobility of students and faculty and improving the quality of and demand for higher studies in India. What that means is that immediate measures are required to mitigate the effects of the pandemic on job offers, internship program and research projects. तो ये हम कैसे करेंगे, ये हमें सोचना होगा. Need to develop quality assurance mechanism and quality benchmark for online learning. ये मैं अभी डिस्कस कर चुका था आप सब लोगों से कि अगर हम इसकी क्वालिटी को मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे ही पास कर देंगे, और जैसा बहुत सारा मैं देखता हूँ, जो आप में से मुझे दीपक सर ने बताया कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ओनर भी हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी पिछले बहुत सारे महीनों से, रादर 1.5 साल से हम लोगों का डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे मीटिंग्स हो रही थी और वो एक अम्ब्रेला एक्ट ला रहे हैं, ला नहीं रहे, ले आए पिछले सितंबर में, जिससे उन्होंने जो हमारी ऑटोनॉमी है उसको थोड़ा कर्व करने की कोशिश की है. तो ये एक्चुअली तब होता है जब हम अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं. जब हम क्वालिटी को नीचे गिरा देते हैं, तो फिर ये जो गवर्नमेंट है उसके पास ये कंप्लेंट्स जाने लगती हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. अगर हम सब एक मिलकर एक बेंचमार्क बना लें कि इसके नीचे हम नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है कि हम ऑटोनॉमी का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. तो हमें एक ऐसा क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म बनाना होगा, क्वालिटी बेंचमार्क बनाना होगा, जिससे कि ऑनलाइन लर्निंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो सके. नहीं तो आप देखते हैं डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, हम ऐसी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन आप अमेरिका से जब एक ऑनलाइन कोर्स करते हैं और आप एक क्रेडिट का $1300, 1100, 1200, $1300 पेमेंट करते हैं, तो आप ऑनलाइन सारी चीजें करते हैं. आपको फ्रीडम है, आप चाहो तो उसमें नकल भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आपने $1200 पर क्रेडिट उसका पेमेंट किया है. तो दूसरे को सिखा के आप क्या करोगे, अनलेस यू लर्न समथिंग बाय योरसेल्फ. तो ये उनका क्वालिटी और ये स्टैंडर्ड है कि आप इंडिया में बैठकर भी उनको $1200-1300 पर क्रेडिट देते हो और उसकी साख बनाते हो. तो ये जो साख है, जो रेपुटेशन है, ये हमको मेंटेन करनी पड़ेगी इवन इफ वी गो फॉर ऑनलाइन. नीड टू बैलेंस यूनिवर्सिटी बजट टू नॉट किल इनोवेशन रिस्क टेकिंग. बहुत सारे लोग इस समय जैसे ही बजट कम करने पे एनरोलमेंट रेवेन्यू की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बहुत सारे लोग कॉस्ट कटिंग के लिए ले ऑफ शुरू कर देंगे कि निकालिए इनको. मुझे लगता है कि ऐसा अगर हम करते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारी भूल होगी और शॉर्ट टर्म गेन होगा. हमें थोड़ा मैनेज करके चलना होगा और हमें थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, और इन चीजों को अगर हम ठीक से मैनेज करेंगे तो आई थिंक कि वी विल बी एबल टू टेक द लीड. ये छोटे से 3 प्रेडिक्शंस हैं जो कि एजुकेशनिस्ट कर रहे हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी. डेफिनेटली तो हमें पता ही है कि जब कोविड है तो ब्लेंडेड लर्निंग ही इंक्रीज होगी, रिमोट टीचिंग लर्निंग एफर्ट्स जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स कर रहे हैं. लेकिन जब हमारे इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे तब हमें एक बार फिर से सोचना होगा कि हमें क्या रेशियो रखना है. तो अगर आप 10 में से 9 पहले फेस टू फेस करते थे
तो आप कम से कम 5 साढ़े 5 फेस टू फेस करें और 4 साढ़े 4 आप ऑनलाइन करें। तो आई थिंक दिस will work very well post COVID-19. प्रेडिक्शन 2 है, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एट एवरी इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको बताया कि हम सबको अब इस तरफ बढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो हमें सोचना चाहिए। हम लोग उस पे जो माइंड मैपिंग कर रहे हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं कि हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक मैंने इंपॉर्टेंट बात अभी नोट की पिछले कुछ दिनों में, जब हम प्रॉक्टर टेस्ट कुछ कंपनी से बात कर रहे थे कि वो करवा दें, तो हमने ये सोचा कि इसमें और लोगों पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप और लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर कभी भी वो जब हाथ खींच लेंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाती है और वो आपको तो जो टीचिंग लर्निंग है वो इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, उसको हमें दूसरों से नहीं लेना चाहिए। तो सिमिलरली जब आप ऑनलाइन कोई चीज डेवलप कर रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी में लोगों को अपने यहाँ लाइए, उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय करिए और उन्हीं से अगर आप ये सारी चीजें बनवाते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले MGRM नाम की एक बड़ी कंपनी थी जो ये ERP सिस्टम्स बनाती थी और बहुत सारे ERP आजकल मार्केट में चल रहे हैं। हमने उनको करीब 30-35 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ पैसा उनको दे भी दिया, अच्छा खासा पैसा दे दिया। लेकिन वो इतना ज्यादा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक इवॉल्विंग यूनिवर्सिटी थी, एवरी डे द रूल्स वर चेंजिंग, तो उसको वो सेट करने में बड़ा मुश्किल आ रहा था। तो अल्टीमेटली वी हैव टू ड्रॉप दैट आइडिया, हमारा सारा पैसा खराब किया। फिर हमने अपनी एक इंटरनल टीम बनाई 4-5 लोगों की, हायर किया। जो बच्चे हमारे विप्रो में सेलेक्ट हो गए थे हमने उनको ऑफर दिया उससे ज्यादा पैसे का कि आप यहीं रहो और आप प्रोग्रामिंग करके हमारा अपना इंटरनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही अब हम जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है ये भी हम सोचते हैं कि हम अगर अपना बनाएंगे तो अपने अभी हमने देखिए पहले क्या किया, जैसे ये कोविड-19 के चक्कर में लॉकडाउन हुआ, हमने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड देखा, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे क्लासेस शुरू की। जैसे ही हमने 11,000 बच्चों को उसमें रजिस्टर किया, वी स्टार्टेड गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड पीपल, आप ये इलीगल कर रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप ये नहीं कर सकते। और हमने कहा कि अच्छा, सब बच्चे हमारे सारे टीचर्स जो थे दे गॉट ट्रेन्ड, हमने उनको ट्यूटोरियल्स बनाकर वीडियो से सिखा दिया बहुत अच्छे तरीके से 2-3 दिन के अंदर, काफी एनर्जी लगाई। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते आप। और फिर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा $1,42,000 आप दीजिए, तब आपको 1 साल के लिए हम 10,000 बच्चों का ये प्लेटफॉर्म देंगे। और उसके बाद फिर हमने एक और क्यूवर्सिटी से बात की, वहां भी यही प्रॉब्लम आया। फिर हमने जूम के 150 लाइसेंस खरीदे और फिलहाल हम जूम से कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू क्रिएट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे जैसे डेवलप होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे अपने सिस्टम्स ये डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और हमारे कस्टमाइज होंगे, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे अपने सिस्टम्स हैं, इनको देख करके हम ये कर लेंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन नंबर 3 है, इसमें मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि ऑनलाइन प्रोग्राम मैनेजमेंट जो आप बाहर से हायर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, उसको आप आउटसोर्स मत कीजिए। ये मेरा खास इसमें मानना है। ये मैं आपको नहीं बताना चाहता, these are some of the very good articles which are recently published about the impact of COVID-19, how COVID-19 will change the entire higher education sector. तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। Let us not discuss about this. This is about liquidity, about the cost, about online vibrancy, है ना? We must reimagine what community look after. So losers and winners. तो ये थोड़े से points हैं. I think there's no sense in discussing about all these things. And मैं अब ये मेरा conclusion है. The global lockdown of education institution is going to cause major and likely unequal interruption in students' learning, disruption in internal assessments, and the cancellation of public assessment for qualification or their replacement by the inferior alternative. जो मैंने अभी बताया, अभी तक क्या होता था, जैसे PhD थीसिस आपका है, आप उसको कई जगह चेक करने के लिए भेजते हैं, आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, आप कई एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं,
तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम इनको इंफीरियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर दें. So we have to be little cautious about all these things. What can be done to mitigate these negative impacts? Schools need resources to rebuild the loss in learning once they open again. Given the evidence of the importance of assessment for learning, schools should consider postponing rather than skipping internal assessment. हम internal assessment को skip ना करें. अभी हम लोगों ने भी सोचा कि ऐसा करते हैं जो second midterm है उसको assignment से replace कर देते हैं. Are we really able to give such assignments where the students do not copy, do not cheat, do not cut paste? तो ये हमें देखना होगा. For new graduates, policies should support their entry to the labor market to avoid longer unemployment period. Having stated as above, I am still not sure what we are going to see happen in long term. I think it depends heavily on the next 2 to 3 months. We must appreciate that every problem is a brilliantly disguised opportunity. We need to grab this opportunity. हमने आज से सोचना अगर नहीं शुरू किया इन सब के बारे में, थोड़ा सा फोरसाइटेड होके, तो मुझे लगता है कि हम रेस में पिछड़ जाएंगे. If we see substantial reduction in cases or improved ability to treat those who contract the disease and things begin to approach normal, I am afraid humanity has a very short memory and I think the amount of positive change we see is limited. हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है. ये चीजें रिलैप्स होती रहेंगी साल के बाद, 2 साल के बाद, तो हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी है और इसको अपनी लाइफ का एक नॉर्म बना लेना है. देखिए जैसे सैनिटाइजेशन, अब हमारी ये आदत हो जाएगी. हम अभी तक नहीं करते थे, अब मुझे लगता है कि इंडिया में भी शायद सिंगापुर की तरह इस पे पनिशमेंट हो जाएगा. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू इनकलकेट एज हैबिट इन आवर डे टू डे लाइफ. दिस इज ऑल. मुझे लगता है आधा घंटा हो गया. मैं इसलिए कहना चाहता था कि मेरी वाइफ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और वो कहती हैं कि मुझे एक इजिएस्ट लगता है ये पता करना कि कौन टीचर है मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं. मैंने कहा कैसे पता करती हो? तो उन्होंने कहा कि वो बोलते बहुत ज्यादा है. तो मैंने ये आज एक पॉइंट बना लिया था कि मैं कम बोलूंगा, 20-25 मिनट में अपनी सारी बात को खत्म कर दूंगा. सो आई थिंक आई हैव स्टिक टू दैट एंड द टाइम इज जस्ट 6:09. सो आई हैव स्पोकन almost for half an hour. Now I open it for discussion and any questions if you have, and I will share all these slides with you. Let me just डॉक्टर साहब 2-3 सवाल मेरे हैं. जी सर प्लीज, जस्ट अ मिनट सर, मैं जरा इसको चेंज कर दूं. स्टॉप शेयर करता हूं. यस सर. पहला सवाल तो सर ये है कि हम यहाँ आप जो सारा जूम को यूज कर रहे हैं और जूम की सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो इसके अल्टरनेट के बारे में आपने क्या सोचा है? हाँ, एक तो अभी कल ही मैंने देखा एक नया वो आया है, उसको बोलते हैं नमस्ते इंडिया करके एक ऐप आया है. तो डेफिनेटली देखिए जब तक दूसरों पर आधारित डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा. मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ क्या है. से नमस्ते है या कुछ? नमस्ते सर. नमस्ते. हाँ, से नमस्ते .in. तो डेफिनेटली देखिए अभी आपने कोविड के रैपिड टेस्ट की किट्स मंगवाई, लाखों किट्स मंगवाई, और अब आप कह रहे हो कि आप उनको यूज नहीं करोगे बिकॉज दे आर गिविंग द. तो मैंने बोला कि आउटसोर्सिंग को जितना हम कम कर सकें और सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें, उससे अच्छी कोई बात नहीं है. हालांकि जूम में ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप उसके जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किए उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो देयर इज नो इशू. लेकिन ऑफ कोर्स अब देखिए आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, सब ये सारा डेटा तो है ही. डेटा इज गॉड. अभी बीच में आया था ना एक सेंटेंस की डेटा इज गॉड. ये सब डेटा पे खेल रहे हैं. ये अब जो मार्केट्स हैं वो हमको गवर्न करते हैं, हमारी सोच को गवर्न करते हैं. हम उनसे गवर्न नहीं होते बिकॉज दे हैव द डेटा. सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी हमारी जो हायर एजुकेशन है या इंजीनियरिंग की एजुकेशन है उसकी सक्सेस बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि हम लोग कितना प्लेसमेंट करा पाते हैं. किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी यूनिवर्सिटी की सक्सेस
इस बात पे काफी डिपेंड करती है कि कितना प्लेसमेंट में करा सकते हैं। जी जी प्लेसमेंट के पीछे क्वालिटी वगैरह सब कुछ है, तो पोस्ट कोविड प्लेसमेंट की क्या पोजीशन होगी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, प्लेसमेंट की स्थिति बहुत खराब होने वाली है ना। ये तो जो रिसेशन 2008 में आपने देखा था उससे भी ज्यादा खराब होगा कि नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्थिति बहुत खराब होगी। इसको देखते हुए हमने अभी एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में क्या किया, हमारे यहाँ 23,000 एल्यूमिनाई है। आप उन 23 आप जिनका प्लेसमेंट तो छोड़िए, जो ऑलरेडी नौकरी में उनकी नौकरी जाने का खतरा है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उस पर अपने एल्यूमिनाई को बता रहे हैं कि आप में से जिसको भी लगता है कि उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, वो अपना सारा डिटेल हमारे प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दे। और हमारे 23,000 में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नौकरियां सेफ है या जो ऐसी पोजीशंस पर हैं जो नौकरियां दे सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये देखेंगे कि किन एरिया में नौकरियां ज्यादा हैं, किन एरिया में नौकरियां जा रही हैं, और उसके हिसाब से अगर हम अपनी एजुकेशन को थोड़ा मोल्ड कर दें। इसीलिए मैंने जो आपको इंडस्ट्री 4.1.0 से लेकर 4.0 तक के बारे में बताया, वो मैंने इसीलिए बताया कि वंस वी आर एबल टू सी द थिंग्स होलिस्टिकली, अगर हम ऊपर से देख सकते हैं, आउटवर्ड की देख सकते हैं, तो फिर हम मार्केट की डिमांड्स को भी देख सकते हैं। और जो मैंने चार्ट बनाया था, कौन सी चीजें ऊपर जा रही हैं, कौन सी चीजें नीचे जा रही हैं, अगर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखा जाए और इसमें थोड़ा और वर्क किया जाए, या जो माइंड मैप मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे हम इसका अलाइनमेंट कर पाएंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो दे पाएंगे। सर अभी तक हम लोग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सभी जगह का, हम लोग बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं जी, है ना। मुझे लगता है कि अब हमको उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, जो जैसा अभी आपने कहा जॉब गिवर बनाने के लिए, यस, इस दिशा में कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा, राइटली और रॉन्गली। अब देखिए ये एक्चुअली अब नहीं, ये तो पिछले 5-6 सालों से ही चल रहा है। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी, जिसको हम बोलते हैं न्यूजन IEDC, न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के लिए जो निस्बेट वगैरह से हमें पैसा मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है कि आप प्रोटोटाइप बनाइए, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाइए। इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चों को 1 साल के लिए आप रेंट पर ऑफिस दीजिए और उनकी मदद करिए। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बिकम इनएविटेबल नाउ। एक दो सवाल और है सर। बाकी और- तो से अगर दे कैन रेज देयर हैंड आंसर। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? नीरव जी सर माय क्वेश्चन इज, हमारा एजुकेशन, आपने आंसर करना था भाई। नहीं सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर को आंसर करना है। नहीं सर मैं इस वक्त एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे ख्याल से देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज व्हिच आर देयर। यस, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ चॉइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। वो आदमी जो इस चीज से लड़ने को तैयार है कि उसे क्या हार्डशिप्स फेस करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर अ स्टेट ऑफ माइंड देन सर एजुकेशन. of course that is So I won't comment on the education available for entrepreneurs. What I want to say is sir, हमारे एजुकेशन सिस्टम इज चर्निंग आउट अ लॉट ऑफ स्पेशल जर्नलिस्ट. आप अगर इंजीनियरिंग डिग्री को देख लें तो देयर इज अ सिविल इंजीनियर, देयर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और ये सिस्टम पिछले शायद 70-80 साल से है. इस वेबिनार में अच्छी बात बताई आपने। मैं सब लोगों को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में। आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना होगा जी. तो मुल्ला नसरुद्दीन ये 12वीं शताब्दी के एक सूफी फकीर हैं। एक दिन क्या हुआ कि इनके घर की विंडो सिल पर एक बड़ा अजीब सा पक्षी आके बैठ गया। जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट करते, 7-7 हजार किलोमीटर ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो एक अजीब सा पक्षी आके, वो थका हारा, शायद वो अपने जो उनका दल था उससे बिछड़ गया था, और वो थका हारा भूख प्यास से बेहाल होकर गिर पड़ा और मुल्ला नसरुद्दीन की विंडो सिल पर आ गया। मुल्ला की नजर पड़ी, मुल्ला ने देखा बड़ा धूल धक्कड़ में फंसा हुआ भूखा पक्षी है। मुल्ला ने ऐसा पक्षी कभी देखा नहीं था। वो कबूतर से थोड़ा मिलता जुलता था नीरव। तो मुल्ला उसको ले आए उठाकर अपने घर में, उसको नहलाया धुलाया, फिर उसके पंख वंख काटे, उसकी कलगी थोड़ी ऊंची थी, उसकी कलगी काटी, थोड़ा चोंच लंबी सी निकली हुई थी, उसकी चोंच काटी, और उसको बिल्कुल कबूतर की तरह बना दिया। और कबूतर की तरह बनाने के बाद बोले अब तुम उड़ सकते हो। क्या वो उड़ सकता था? तो एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा ही है। हम अलग अलग यूनिक पर्सनालिटीज को
कबूतर की तरह बना देते हैं। तो अब जीएलए में जो भी आएगा, 100 बच्चे आए, सबको कंप्यूटर एजुकेशन देके 4 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना के और कंपनी के लिए बना देते हैं, लो भाई कबूतर तैयार हैं आपके। तो एक्चुअली वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली होना कैसा चाहिए। तो अब आप जब 100 लोगों पर एक टीचर रखोगे या 4 टीचर रखोगे, तो फिर तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन हो नहीं सकती। वो तो तभी हो सकती है जब 9 बच्चों पे 6 बच्चों पर एक टीचर हो। नहीं, but sir, my question is now, sir, जी। my question is a follow up on what you said. Yeah. It was exactly what I wanted to say. My issue is, sir, now with online education increasing, Yes. what you will have is you can easily, separate good teachers and bad teachers, good students and bad students. बिल्कुल। So what I foresee is there will be a lot of specialization now. Yes. Instead of a civil engineer or a mechanical engineer, we'll be talking about a structural engineer or Yes. somebody who is going to work on site. Yes. So do you see a scenario wherein a lot of, the education institutes as they've been formed now, they'll go down, we'll have specialized institutes and we have uniform assessment systems. आप ऑनलाइन टेस्टिंग के खिलाफ लगे, पर मुझे ऐसा लगा कि आने वाला टाइम ऑनलाइन टेस्टिंग का ही होगा। नहीं, वो मैं ऑनलाइन टेस्टिंग के खिलाफ नहीं, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। मैंने $1200 पर क्रेडिट देकर 7 ऑनलाइन कोर्स किए जी। आई स्पेंड 25 लाख रुपीस ऑन ऑनलाइन कोर्सेज। तो उसका असेसमेंट मैंने वैसे ही मेरा हुआ, ऑनलाइन ही हुआ। ऑनलाइन। तो सर, डू यू सी दिस सिचुएशन कमिंग ओवर टू इंडिया नाउ? हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया तो देखिए, जैसे ये हर जगह एक जैसा होता है। डार्विनियन थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा, जो कंप्रोमाइज करेगा वो डूब जाएगा। तो आप करिए आराम से। अभी भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिग्रियां बेचती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक और बड़ा पॉइंट बताता हूँ। मैं अभी अपने फैकल्टी से बात कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स ऐसे हुए, जब हमने थोड़ा सख्ती की, हमने जब उनको कंपेल किया एक एपीआई, एनुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू, कि आपको पर ईयर इतना रिसर्च पेपर लिखना है, इतना पेटेंट कराना है, इतना आपका टीचिंग में मार्क्स आने चाहिए। तो काफी सारे टीचर छोड़कर एक ऐसी जगह चले गए आसपास के इंस्टीट्यूशंस में, आई विल नॉट नेम दोज इंस्टीट्यूशंस, जहां उनको आसानी थी, जहां उनको इतना टेंशन नहीं था, और तनख्वाह हमारे यहाँ से 5000 कम थी। लेकिन 5 साल के बाद उनको जब ऐसा महसूस हुआ कि अब उनके इंस्टीट्यूशन बंद होने वाले हैं, दे स्टार्टेड अप्लाइंग बैक। वो मेरे से कांटेक्ट किया, यार हमारी अब जीएलए में क्या हमारे लिए जगह मिल सकती है, हम बड़े अच्छे थे जीएलए में। तो जीएलए ने उनके जो सीवीज थे वो स्क्रीन तक नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया था। तो अगर आप आने वाले समय में, तो आजकल एक जो एट्रीब्यूट है, अगर आप देखें जो ग्रेजुएटिंग एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एट्रीब्यूट। तो अगर आप हर दिन के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करते और अडेप्टेबल नहीं है नए चेंजेस के लिए, तब आप सरवाइव नहीं कर सकते। और ऐसे ही आप ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी चाहिए इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए। तो ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो होपफुली वी विल फ्लरिश। तो सिंपल सा है। किसी के और कोई सवाल है क्या? जी भाई, हाँ, एक सवाल है अपना। हेलो सर। जी सर, निर्मल सर। सर मैं बोलूं? जी बोलिए सर, बोलिए। सर मैं एक चीज पूछ रहा था कि अभी तक आपने जो भी चर्चा की, सारी चर्चा बहुत बेनिफिशियल की, बहुत अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू। लेकिन आज हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी भी ग्रेडिंग है। ये कुछ इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल है, कुछ इंस्टीट्यूट एकेडमिक हैं, कुछ इंस्टीट्यूट कहा जाए कि डिवेल हैं, कई तरह के हैं। और आज जो हमको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी चलाने हैं, जो डिवाइस पैदा करनी है, इन दोनों में तो अलग अलग होगी। और इसके लिए रिक्वेस्ट आपसे ये है, जो मैं जानना चाहता हूँ, अभी तक आपने जितनी चर्चा की, ये टोटल थ्योरेटिकल चर्चा की। यदि प्रैक्टिकली हम इसको लाना चाहें, जैसे आपने कहा कि इसके लिए मैं वर्कशॉप भी जो है ऑर्गेनाइज करूंगा, तो क्या हम लोग ऐसी चीजें जो हमको प्रैक्टिकली मिल जाए कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या हमारे जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे सर, तो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट की रेशियो कम हो जाएंगे, क्या हमारा विश्वविद्यालय इसको मान्य करेगा या नहीं करेगा? इस पे हम लोग क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे अभी हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे
यूजीसी ने कमेटी बनाई कि क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करा सकते हैं या नहीं करा सकते मैं हैं। कैसे लिखूंगा, मेरा So कुछ as an affiliating institution, as an affiliating college, we have to follow certain rules and regulations of the government. तो कई बार हमारे पास वो बंधन भी होते हैं, और वो मैंने फिर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, अगर हम ऑटोनॉमी का ठीक ठीक फायदा उठाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए, तो वो गलत करने की वजह से हमारे ऊपर इतने अंकुश हैं। तो क्योंकि नंबर, अब आप जैसे मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे आसपास के एरिया में, उसने 24,000 बच्चों को रजिस्टर कर लिया और उसके यहाँ बैठने की सुविधा नहीं है 5,000 बच्चों में। आप सोचिए उसकी जब शिकायतें जाएंगी तो फिर गवर्नमेंट बंधन लगाएगी, और गवर्नमेंट के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन को 3 लेवल पर सोचना होता है, टू गिव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, फॉर द नेशनल मार्केट एंड फॉर द लोकल मार्केट। वो लोकल नीड्स को भी समझे, नेशनल नीड्स को भी समझे और इंटरनेशनल नीड्स को भी समझे। इसी के हिसाब से अगर आप तैयारी कराएंगे, जैसे आपने बोला इंस्टीट्यूशन भी अलग अलग तरीके के, ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं है या उनसे अच्छी नौकरियां नहीं लगती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद आपको 9 लाख रुपए का और 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, लेकिन आप लोकल डिग्री कॉलेज से जब एमए इकोनॉमिक्स करते हैं आपको 10,000 रुपए का कोई क्लर्क भी नहीं रखता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग। आलोक चतुर्वेदी जी हैं, वो क्वेश्चन पूछे प्लीज। जी, नीता मैम। थैंक यू सर। अनूप सर, मैं अभी तक आपने जो मुझे हमारा जो सब्जेक्ट है एजुकेशन पोस्ट कोविड, तो अभी तक आपने जो बताया ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, वो उसकी जो सक्सेस रेट है, या जैसे आपने जो कोर्सेज किए वो हायर एजुकेशन के लिए, बट पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग दिस कोविड एरा अभी हो क्या रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी हम कंपेयर्ड हैं ऑनलाइन के लिए। सो डोंट यू थिंक दैट वी नीड ए मोर रोबस्ट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एंड ए सिंप्लीफाइड education system for primary kids, because it's too complicated for them. Yes. At one hand they have to study and on other hand they have to educate themselves for this online system. You are 100% right। देखिए 100% तो ये रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है। मैंने बोला ना कि ब्लेंडेड मॉडल ही सक्सेसफुल होगा। आप 100% प्राइमरी एजुकेशन में तो और भी ज्यादा मुश्किल है। आप प्राइवेट प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल्स के बारे में तो बात कर सकते हैं, मे बी लता मैम कैन afford that kind of technology in her school, लेकिन what about the government primary schools? गांव में तो अभी इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है, स्मार्टफोन्स भी नहीं है लोगों के पास, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि पूरा एक टास्क फोर्स अगर गवर्नमेंट बनाती है, और उसमें प्राइवेट वाले तो कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए प्राइवेट वाले लोग क्या कर सकते हैं? मैम से एक बार बात कर लेते हैं। लता मैम, हाउ डू यू सर आई जस्ट वांटेड टू नो, जो ब्लेंडेड आपने मॉड्यूल बताया है आफ्टर वी गेट आउट ऑफ दिस फेज, उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी क्या उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं? लाइक the number of teachers, the number of admissions, the number of registrations of students, more than the required amount, lesser than the required amount. Some of them could be, spurious also. So I would just like to know that, as you said, we have to have a blended program. So in this blending, we might end up in trouble. हाँ, देखिए, एक तो मैंने बताया आपको कि ब्लेंडेड में जो सिंक्रोनस क्लासरूम टीचिंग है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। हमें एसिंक्रोनस का मतलब है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर जाकर बच्चा ऑनलाइन आता है और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप उसमें अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, उसमें डिस्कशन फोरम बनाते हैं, उसके इतने सारे मेथड्स हैं। से फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड सम कोर्सेज ऑनलाइन, तो मुझे बोला कि मान लीजिए 30 बच्चे हैं उस क्लास में, तो यू हैव टू रिप्लाई 2 ऑफ थ्रेड्स ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स। तो आप कंपलसरी आपके लिए कि आपको 2 का रिप्लाई करना ही करना है।
तो अच्छा वो जब, और आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब मैं एक असाइनमेंट लिखता था अगर उसके टोटल वर्ड काउंट होता था 700, कैन यू बिलीव द फीडबैक आई गेट फ्रॉम माय प्रोफेसर हैड 1000 वर्ड काउंट। तो 700 वर्ड के असाइनमेंट का फीडबैक 1000 वर्ड्स में मुझे आता था। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। यू कैन सी हाउ डिटेल्ड फीडबैक दे यूज्ड टू गिव। तो और आपने जो बात बताई वो 100% ऑनलाइन पर नहीं जाना है। मैंने जब ब्लेंडेड बोला तो इसका मतलब ये है इवन AICTE हैज ऑलरेडी एग्रीड बिफोर कोविड, दे एग्रीड कि आप, अगर हम लोगों ने अपने यहाँ कर दिया है, हम लोगों ने बोला 1 कोर्स पर सेमेस्टर यू कैन डू ऑनलाइन। तो NPTEL का एग्जाम होता है, अभी क्या होता है वो एग्जाम तो कराते हैं JEE की तरफ ऑनलाइन कराते हैं, लेकिन वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, सामने बैठ के आप करते हो, ऑनलाइन करते हो, आप उसका सर्टिफिकेट ले आते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेक्चर आप NPTEL से या स्वयं के पोर्टल से देख रहे हो। अब उसके बाद हम उसके जो क्रेडिट्स हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कोर्स ऑनलाइन कर लिया NPTEL के 40 लेक्चर्स के बाद और उसका एग्जाम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट ले लिया, वी विल रिप्लेस योर फेस टू फेस कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट बाय दैट सर्टिफिकेट गिविंग यू द सेम मार्क्स। तो अभी जो आपकी रिलायबल एजेंसीज हैं जैसे NPTEL है, या आपका जो MOOC के थ्रू अगर आपके विदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सर्टिफिकेट कोर्स आप करते हैं तो फिर आप उनको वेटेज दे सकते हो। So you have to, you know, make some certain benchmarks. Thank you very much, sir. So there is a one question. Yes, sir, please. Sir, ये अभी जो brick and mortar institutes थे, they were already hard pressed for students, admission of students. But after ये जो brick and mortar institutes हैं, ऑनलाइन जैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो physical institutes थे, brick and mortar institutes, they were already hard pressed for admissions. What will be their future after this disruption? देखिए ऐसा नहीं है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं एनरोलमेंट का प्रॉब्लम आएगा, है ना, ऐसा नहीं है एनरोलमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सरवाइव करेंगे और अपने आप को उसी तरीके से ढालेंगे। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आने वाले समय में जो स्कूल का आर्किटेक्चर है, कॉलेज का आर्किटेक्चर है, उसमें भी पोस्ट कोविड कोई चेंजेस आ सकते हैं। आपको बड़े क्लासरूम की जरूरत हो सकती है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत हो सकती है, इवन आपके हॉस्टल के आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, सारी चीजें बदल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो अभी पोस्ट कोविड ही पता लगेगा क्या पोजीशन होगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बंद होने के कगार पर भी हो जाएंगे। अमेरिका में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी फीस को पहले ही कम कर चुके हैं, तो कोई स्केल को बढ़ाकर उसको कवर करने की कोशिश करेगा, कोई देखिए एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हमारे लाइफ में रिलीजन का या दूसरी चीजों का महत्व है, ऐसे ही हमारी लाइफ में एजुकेशन का भी महत्व है। तो आप बहुत चिंता मत करिए, एजुकेशन की जरूरत होगी। पोस्ट कोविड जो नई चीजें आएंगी, थोड़ा सा एरिया बदल जाएगा, लेकिन एजुकेशन तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देना ही चाहेगा, कितना भी कम ज्यादा हो। बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कितनी ठीक एजुकेशन उसको कहाँ मिल रही है, वहां पे नंबर बढ़ेगा। हमारे बीच में निर्मल सिंह जी हैं गाजियाबाद से, ही इज एन एजुकेशनिस्ट। मैं चाहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। निर्मल सिंह जी क्वेश्चन ही लाइव भी दे सकते हैं सर, क्वेश्चन के जवाब देते देते तो मैं थक जाऊंगा। नहीं सर, I am just brief to my question, sir. You mentioned in your presentation that India would be getting the opportunity for the students who would be going abroad for higher education. In that context, I just want to know how our Indian government is prepared for that, how Indian institutions are prepared for that, and is there any mechanism or these policies of the government which can encourage the students from abroad to have higher education in this country? Because our country, I feel, is not that much affected by COVID-19 comparing to America and other European countries. अभी तो कुछ कह नहीं सकते. It is very uncertain the kind of pace the patients are, being diagnosed every day.
अभी तो कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऐसा बोल रहे हैं, कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि बाय 15th of May देयर विल बी 38,000 डेथ्स एंड 6 लाख पेशेंट्स इन इंडिया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये लॉकडाउन से स्पीड थोड़ा धीरे में जरूर हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये सारे लोगों को होगा इन्फेक्शन, ऐसा मुझे महसूस होता है, और फिर हम धीरे धीरे इससे इम्यून हो जाएंगे। द ओनली बेनिफिट ऑफ दिस लॉकडाउन इज कि लोगों में कैओस नहीं होगा। एक साथ अगर बहुत सारी डेथ होंगी तो आपको क्रिमेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, मेडिकल की फैसिलिटीज हम कोप अप नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड तो ऑलमोस्ट हो ही गया है जिस स्पीड से ये चल रहा है। रोज कोई ना कोई, मथुरा में भी अभी 10 केस हो गए मुझे पता लग रहा है, तो बस ये 11 केस हो गए। तो मुझे लगता है ये होगा तो सबको, और इसमें बड़ा लंबा नंबर जाएगा। Only way is the herd immunity. हाँ, वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, यंग लोग बाहर निकलेंगे, और अभी भी हो सकता है, मुझे लगता है लाखों कैरियर होंगे इसके, उनमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो, तो उनका खतरा केवल ये है कि वो जब बड़े लोगों से या बच्चों से मिलेंगे तो उनको अगर वो इन्फेक्शन दे देते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड हो जाएगी। बाकी मुझे लगता है यंग लोग, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है, तो शायद इंडिया सरवाइव कर जाए। और ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहे हैं कि इस सब झटके को हम धीरे धीरे करके झेल सके। अगर अभी लॉकडाउन खोल देंगे और मास में ये हो जाएगा तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, ना तो हमारे Indians have a better immune system as compared to European and Americans. और फिर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। सो आई थिंक वॉट एवर स्टेप्स दिस गवर्नमेंट इज टेकन, दे आर वेरी राइट, एंड दे आर दे आर थिंकिंग फ्रॉम अ हायर बिगर पर्सपेक्टिव। तो ये जो आपने सवाल पूछा, इसकी देखिए पॉलिसी अभी तक कोई भी नहीं है, और शायद मेरे ख्याल से यूजीसी या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ऐसा सोच रही हैं। इससे पहले भी हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने आने देने की बात कर रहे थे। अच्छे इंस्टीट्यूशन, नए एम्स, नई आईआईटीज, नए आईएम्स तो खुल ही रहे हैं। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े ग्रुप हैं वो आ रहे हैं। तो आई थिंक दे ऑल विल केटर टू दीज काइंड ऑफ डिमांड्स ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स हु वुड नॉट बी एबल टू गो अब्रॉड। उनके लिए यहाँ पे है। आप देखिए अभी एक अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, वो ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में they charge 9 lakh rupees per annum for a BA course. So you can think that and people are giving. तो ऐसा नहीं है, वो भी केटर की जा रही है धीरे धीरे। केडी भाई, मेरे ख्याल से आप समाप्त करेंगे प्लीज। अनूप जी का बहुत टाइम हमने ले लिया, उनको हेलो, मैं यही हेलो हेलो हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जी। हेलो हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ विवेक मिश्रा, ज्ञान महाविद्यालय अलीगढ़ से। जी जी जी। हाँ सर, ये है कि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अभी पेपर रह गए हैं। हाँ जी, उनके पेपर रह गए हैं, तो हम लोग रिवीजन जो है वो जूम से ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। वेरी गुड। तो हाँ, तो उससे ये हम लोग को भी सीखने को मिला है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखने को मिला है। लेकिन हमको जितना अच्छा जो आत्मसंतुष्टि है वो क्लासरूम में होती है, क्योंकि क्लासरूम में हमारा आई कांटेक्ट होता है बच्चों से, ठीक है, वो हमें आत्मसंतुष्टि ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाती। इसमें कुछ सुधार का चांस है। विवेक जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो जब भी आप कोई चेंज होता है तो हमेशा पीपल आर नॉर्मली रेजिस्टेंट टू चेंज, चेंज के लिए हमेशा रेजिस्टेंट होते हैं। आपके पास अगर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप अगर अमेरिका में बैठे हो तो आपके पास टेलीफोन और फेसबुक के अलावा आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है ना। लेकिन आप एक बात और बड़ी नोटिस करिए, जब आप अमेरिका में होते हो और आप अपने फैमिली वालों से फेस टाइम पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप दूर हो, आप उनसे अपने मन की बात कह पाते हो, है ना। आपको तब ये महसूस होता कि आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर जूम ऑनलाइन क्लासरूम ऑल्सो। एक बात। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर एवर बी the 100% substitution of face to face learning। जैसे मैं अब कुछ लोग बोलते हैं ना पीपीटी, मैं कभी पावर पॉइंट से पढ़ाता नहीं क्लास में। वो जो कुछ लोग कहते हैं पावर करप्ट्स एंड पावर पॉइंट करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो पावर करप्ट करती है, वो रूसो का, नीरव बताएंगे किसका है ये, किसी का पॉलिटिकल साइंस में बड़ा फेमस वो है ना सेंटेंस, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इसको अगर आप एजुकेशन में देखते हैं तो पावर करप्ट्स एंड पावर पॉइंट करप्ट्स एब्सोल्युटली।
तो मैं खुद ही उसका विरोधी हूँ टेक्नोलॉजी का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप हमेशा एक टीचिंग एड मानकर यूज करिए, ना कि 100% सब्स्टिट्यूट की तरह। तो दीपक भाई मैं वाइंड अप करूंगा। हाँ केडी भाई आप करिए प्लीज। ठीक है सर। पहले तो जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, सब लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। मैं कुछ डॉक्टर अनूप जी ने जो कुछ बहुत लंबा विषय रहा है, इसको बहुत शॉर्ट में शायद वाइंड अप करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अनूप जी का बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ, क्योंकि शिक्षाविद के नाते, प्रशासक के नाते उनका जो जीवन यात्रा है मैं उसको देखता हूँ। उनको अंग्रेजी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों पर उनका इक्वल ही अधिकार है, भाषा पर, शैली पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, जैसा आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, वह हर एक व्यक्ति में एक साथ इतने गुण नहीं मिल सकते। और इतना ही कह सकता हूँ कि जीएलए इंजीनियरिंग का जो एक जीएलए यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है, और आज जीएलए यूनिवर्सिटी का जो स्थान है, और अभी डिजिटाइजेशन और ये सारा कुछ जीएलए ने लीड ले ली ऑलरेडी, बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जीएलए इसमें ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अनूप जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब कुछ बातें अनूप जी ने कहा, बात शुरू की अनूप जी ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, तो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन में भी वो स्थिति है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या था कि पहले फैक्ट्रियां जो थी घरों में थी, अलग से कोई आइडेंटिफाइड नहीं थी, अलग से कोई फैक्ट्री आइडेंटिफाइड है या इंडस्ट्रियल आइडेंटिफाइड है। तो अभी तक हमारे यहाँ तो जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं किस लेवल के हैं, कितनी मशरूमिंग है। अभी तो यूनिवर्सिटीज की मशरूमिंग होने लगी है, तो कुछ ना कुछ। और फिर सेकंड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, वही स्थिति मुझे लग रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसी स्टेज पे अब शायद हम आ गए हैं, आने वाले हैं, कि अपने एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को हम कितना प्रवेश करा पाएंगे, कितनी तेजी से करा पाएंगे, कितनी अच्छाई से करा पाएंगे। सवाल इसमें यह है कि हमारे कितने इंस्टीट्यूशंस में ये कैपेसिटी है कि वो जो कॉस्ट आने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसको बियर कर सकें। मुझे लगता है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट ही इसमें रह पाएगा। एक बात अनूप जी ने बार बार कही है कि हम एथिकल रह के आगे बढ़ेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी में, तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, वरना कहीं ना कहीं रास्ते में लुढ़क जाएंगे। वैसे तो सारा विषय उनका हायर एजुकेशन पर ही रहा है, और जितनी लर्निंग की जो भी वैरायटी है, क्वालिटी है, उन्होंने काफी उसमें कवर करने की कोशिश की है। आधा घंटे में 40 मिनट में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली यही मैं लास्ट में मैं इसको समअप करने में यही कहूंगा कि भाई वी हैव, इट इज अ बिग चैलेंज हमारे लिए भी, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो निश्चित रूप से उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, और जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस ही सर्वाइव कर पाएंगे। यही मेरा मानना है। अनूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरव निवेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे होने वाले असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं, कि वो अनूप जी को थैंक्स देने का कष्ट करें। अच्छा। थैंक यू प्रेसिडेंट सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जब मेरे पे मैसेज आया था वेबिनार का, तो I must tell you, I know personally Dr. A.K. Gupta ji, and I was hoping for a holistic approach in his presentation and a knowledgeable presentation. Sir, none of our hopes were belied. Not only the presentation was knowledgeable, it was honest as well as detailed. By honest, what I want to say is the challenges facing the education sector were in a very honest way presented before the whole forum. उसके बाद सर जिस तरीके से the question answer session was handled by sir, your humility was for all to see. आपने जितनी खूबसूरती से इसको हैंडल किया, all thanks to you sir for giving us this opportunity to listen to you. I'd like to thank our moderator KD Agrawal sir. सब लोगों के क्वेश्चंस को उन्होंने जिस खूबसूरती से उठाया और डिस्कस किया, it was for all to see. हमारे अजीत अग्रवाल, रोटेरियन अजीत अग्रवाल साहब को एक बड़ा मुश्किल काम दिया था कि इंट्रोड्यूस करना है डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी को, गागर में सागर बनने जैसा था, and he could do it very wonderfully. I'd also like to thank
President RC Mathura Center Rotarian Deepak Goyal ji, and our Secretary Rotarian Nilesh Tatiwala ji for organizing such a wonderful webinar. Last but not the least, I'd like to thank all the attendees. Sir, webinars बहुत हो रही हैं. Usually it's a fish market approach. आप लोगों ने जिस खूबसूरती से सवाल किए और पूरी बात को सुना, ये वेबिनार्स कैसे आयोजित होनी चाहिए, इसके लिए हर एक के लिए एक लेसन है. Thank you all for attending the webinar and for asking questions. Thank you, sir. Very true, very true, very disciplined and very, great webinar. Thank you, Anupji. Thank you, all the members. They have come from Bareilly to Biznor to Ghaziabad and different places. They were having lot of questions to be asked, but it is a matter of time also. Next time we are going to have another webinar in details. It will be our pleasure to receive you back in the webinar. Thank you very much for joining us. Thank you, sir. Thank you. Thank you.